Hello, everyone. Today, we are starting with one of the series that is very special, and it is named as Law Ke Baad Kya. I'm sure all the aspirants and all the students who are pursuing law, वो लोग लॉ की डिग्री तो ले लेते हैं और उसके बाद फिर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि लॉ के बाद हम क्या करें. शुड वी ज्वाइन कोर्ट्स एंड प्रैक्टिस, या फिर हम एलएलएम करें, या जुडिशरी की तैयारी करें, या कॉर्पोरेट जॉब्स में चले जाएं, या एडीए, या एपीओ, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, टीचिंग, ड्राफ्टिंग, रिसर्च, या फिर कुछ और करें. सो बेसिकली देर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस, बट वी लैक दैट क्लैरिटी. और वो जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल भी नहीं है amongst the law students. So the purpose of this series is कि मैं आपको एक क्लैरिटी दे सकूं थ्रू रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ रियल पीपल जो लॉ के बाद कंफ्यूज तो है, बट उन्होंने जो दे आर दीज पीपल जो जिन्होंने लॉ कर लिया है, और लॉ के बाद वो लोग भी कंफ्यूज थे, पर उन्होंने अपना रास्ता बना लिया. एंड टुडे दे आर डूइंग अमेजिंग थिंग्स इन लीगल फील्ड. सो कोई एडीओ बन गया है, कोई जज बन गया है, किसी ने somebody is in the uniform services, कोई somebody is a probationary officers. तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हम ऐसे लॉ स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आपको शेयर करें अपना success story. So today, I have a very special guest, someone who has lived the roller coaster of competitive exams. She is a law graduate. She is a LLM topper. She is a UGC NET qualifier. She has given multiple judiciary attempts. She has faced the interviews. And after so many things that she has achieved, she was hoping for something. When so much you achieve, you hope for something which is going to happen, right? And hours of study, countless tests, but still if you don't get that result that you're hoping for, do you give up or you show up again? She's a girl who showed up, and now she is an ADPO officer in Madhya Pradesh. So ADPO is equivalent to ADA. जैसे हम कुछ स्टेट्स में हम ADA बोलते हैं, ठीक है? तो she is an assistant director prosecution officer. Please welcome Apurva. Welcome Apurva to Law Ke Baad Kya, the series where we decode the real struggles and real success stories from the world of law. So she is going to walk you through her setbacks, her comebacks, and exactly how she cracked one of the most sought after posts in the legal field, that is ADA or ADPO, Assistant District Prosecution Officer, or we also call it as an Assistant District Attorney. So Apurva, welcome once again. Let's get started right away. What kept you going when the failures outnumbered the wins? First of all, thank you, ma'am, for giving me this opportunity. Basically, there is concept called independent women. So simply, after graduating from a college, तो मुझे भी लगा कि मुझे independent तो बनना ही है, और फिर इसके लिए मैंने efforts किए. Because independence for women means financial independence is a token of freedom. So I just followed it, and therefore this motto kept me going. Wow, great. Very good. Very excellent. Excellent. So the motto that, you have to achieve that freedom, and freedom through financial independence is what made her keep going. Yes, dependence is difficult nowadays. And that's excellent that, you had a clear purpose in life, and keeping that clear purpose in life, you kept going. So that's wonderful. Yes. If I talk about the exams, yes, please, Apurva. Yes, one of the motive is also to be a contributing member of the society. कि यदि आपने Great. लॉ कर लिया है, लेकिन यदि आप कुछ करेंगे ही नहीं तो आप कंट्रीब्यूट भी नहीं कर पाएंगे सोसाइटी के लिए. So apart from Abs- financial independence, I also want to contribute something to the society. yes, तो वो सर्विस वाली भावना,
वो भी Yes. बहुत इम्पोर्टेंट है. Yes, yes, yes. So that's excellent. So these are the two things that made her, on her targets very clear and kept her going. So that's wonderful, Apurva. And if I talk about the exams, where do you think things went wrong in judiciary? जब आप जुडिशल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, were there any specific mistakes or was there any specific strategy or a mindset that you thought कि ये चीज काम नहीं करी, बट ये चीज अगर मैं करती तो वो काम कर जाती? तो ऐसा कुछ स्पेसिफिकली था? आई वुड से कि जो लॉ में जैसे एमपी, यूपी और छत्तीसगढ़, आई हैव टारगेटेड 3 states, सो यहाँ पे मल्टीपल पेपर्स होते हैं. सो माय फोकस वाज ऑलवेज ऑन द लॉ पेपर्स, मींस talking about the civil law, criminal law, evidence law, procedural law. But I never focused much on translation, essay writing, or judgment writing. So it was the biggest setback for me. If I have focused on paper 4, as we call it, judgment writing in MP, or in other states too, so it would be an easy journey for me. राइट, राइट, राइट. सो आई थिंक जितने भी जुडिशल सर्विसेज एग्जामिनेशन है, उसमें एक होलिस्टिक अप्रोच चाहिए. Yes, आप you. ये नहीं कर सकते. Yes, yes. I truly यस, support. यस. तो यू जस्ट कांट थिंक दैट अगर आपने ये जो 8-9 मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो आपने कर लिया और आप क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं हो पाएगा. आप उसमें मास्टर भी बन जाइए, रिसर्च, मतलब यू आर द मास्टर ऑफ दीज सब्जेक्ट्स, बट यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई. सो आई ऑल्सो फील दैट इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव टाइम मैनेजमेंट, बैलेंसिंग ऑफ योर माइंडसेट, राइट? आपका जो है हेल्थ, आपका लॉ सब्जेक्ट्स, आपके लोकल लॉज, आपका ड्राफ्टिंग, आपका ग्रामर, ये सब चीजें इन प्लेस होंगी, तभी आप ये वाला जो एग्जाम है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, उनको क्वालिफाई कर पाएंगे. So that you have identified. So are you also looking forward to give the exam anytime soon again? Actually, it is now God's plan. If permits, if my life permits or the situations permit, I would give it. Otherwise, I am happy at my job, which I am doing currently. Okay, great. So now I want students to take notes. The viewers should take notes because अब ये जो मैं आगे सवाल पूछने वाली हूँ और जो अपूर्वा उसके जवाब देगी, it's going to be a learning for all of you. So all of you can just go and grab a pen and a notebook and just take notes. So Apurva, I want you to please share your 3 biggest mistake that you realize as a judicial aspirant should avoid at any cost. 3 ऐसी mistakes जो जुडिशल एस्पिरेंट्स को नहीं करनी चाहिए. पहली तो यही जो आपको अभी शेयर की कि मैंने सबसे ज्यादा फोकस लॉ पेपर पे किया, जबकि मुझे समरी राइटिंग, ट्रांसलेशन, ऐसे इन पे भी फोकस करना था. मींस यू नीड टू बी होलिस्टिक while preparing राइट, for judicial services. So first, it was my first mistake. Second was relying on too many sources. I kept studying, means ये भी पढ़ लिया, वो भी पढ़ लिया, multiple sources पढ़ लिए. तो यदि इसके बजाय होता कि मैं एक पाथ को फिक्स करती और उस पे ही चलती, तो शायद ये जर्नी और भी इजी हो जाती, पहले ही अचीव हो जाता. और थर्ड मिस्टेक थी मेंटल सेटअप के बारे में, कि जो सोच लेते हैं अपन की नहीं मुझे तो जल्दी बन जाना है, फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया है, फिर उसके बाद जितने भी अटेम्प्ट आते हैं उसमें फिर आप ढीले पड़ जाते हैं. तो जो मेंटल सेटअप है, जितनी भी जुडिशियल एस्पिरेंट है, मैं सबसे कहना चाहूंगी कि आप ये सोच के मत आइए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो जाएगा. बस ये सोच के आइए मुझे जज बनना है, जब तक नहीं होगा करते जाना है. राइट. दैट इज एक्सीलेंट. आपने तो बिल्कुल बोलते ना तराश कर चीजें बता दी कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला कि एक कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ाई करना है. तो 24 आवर्स जो है, उस 24 घंटे में से अगर आप 6 घंटे लॉ के लिए निकाल रहे हो, तो 1 घंटा जरूर अपने लैंग्वेज पेपर के लिए निकालिए. राइट, यस. ठीक है. उसमें से फिर आप वीकेंड पे जो है एसेज लिख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कर सकते हैं. तो इस तरीके से कॉम्प्रिहेंसिवली अपनी पढ़ाई कीजिए. सेकंड, आपने मुझे ये बताया कि that the mindset, you spoke about the mindset, and the third one is the primary source, क्योंकि रिलाइंग सोर्स बहुत सारा है. यस. सो 3 थिंग्स. सो प्राइमरी सोर्स, व्हाट शी मेंट इज, जो क्योंकि हमें क्या होता है ना, हम बेट हो जाते हैं. हमें फ्रेंड का फोन आया, तुमने एके जैन पढ़ी, तुमने अवतार सिंह पढ़ा, तुमने एक अकेडमी के नोट्स पढ़े, तुमने वहां वाली अकेडमी के नोट्स पढ़े, ठीक है. तो उससे क्या हो जाता है कि हम अपना जो पाथ है या जो अपनी क्लैरिटी, अपना फोकस, उसको लूज करके और उस चीज पे लग जाते हैं.
So we have to have a very set, focused, clear path and primary source of preparation. आप पहले 15 दिन 20 दिन रिसर्च कर लीजिए कि अगर मुझे टीपीए पढ़ना है, मुझे अगर सीपीसी पढ़ना है, मुझे अगर बीएनएस पढ़ना है, तो मेरा सोर्स ऑफ स्टडी क्या रहेगा। उसके बाद मैं उस सोर्स को चेंज नहीं करूंगी, राइट। सो दैट सोर्स हैज टू बी वेरी क्लियर। एंड तीसरी चीज जो है, माइंडसेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि हम लोग जितने भी जुडिशियल सर्विसेज एस्पिरेंट्स हैं, हम लोग फोकस ही किस पे करते हैं, लॉ लॉ लॉ। बट आई टेल यू, देयर आई हैव सीन स्टूडेंट्स इन माय एक्सपीरियंस दैट वो कहते हैं कि एग्जाम देने से पहले हमारा मैम हाथ कांप रहा है, हम नहीं दे पा रहे, बिकॉज द माइंड इज नॉट इन सिंक, राइट। तो एक तो माइंडसेट, बहुत स्ट्रांग माइंडसेट बहुत जरूरी है, और आपको उस पे पागलपन चाहिए। ये नहीं कि एक अटेम्प्ट में हो गया, पागलपन Yes. चाहिए, दीवानगी चाहिए उस चीज के लिए, राइट। एंड देन यस, यू विल डेफिनेटली अचीव योर गोल। So Apurva, thank you for giving wonderful three, things that all the judicial services aspirants should avoid while they are preparing for the judicial services examination, right? Okay. My next question to you is that, was there any, did you rely on any coaching, or, you were just preparing on your own? हाउ डिड यू प्रिपेयर, मतलब आप किसी कोचिंग पे रिलाई कर रहे थे, या आप खुद से ही प्रेपरेशन कर रहे थे, सेल्फ स्टडी कर रहे थे? In my initial stage, it means you can call it at the time of college, when I have decided that I want to become a judge. Then I have joined a coaching, means a local coaching in Indore itself. Then I Okay. have completed 1 year program at the coaching. Then I have done self study. ओके ओके, सो बेसिकली आपने कोचिंग लिया। सो व्हेन यू टेक कोचिंग ना, तो हम इतना ओवर रिलाई करते हैं कोचिंग में, दैट समटाइम्स वी डोंट प्रैक्टिस इनफ क्वेश्चंस, और वी लैक दैट इमोशनल कंट्रोल बिकॉज वी आर सो मच रिलाइंग ऑन द कोचिंग सेंटर. So there are students who are watching this and who are exactly on the same spot as you were a couple of years before. They are unsure, they are burnt out, they have taken coaching, and maybe even they are thinking of quitting this exam. So what would you say to them, not as someone who has succeeded in life, as in career right now, but as someone who survived all those failures? So what message would you like to give to them, Apurva? Firstly, I would like to say one thing. You must do a coaching only at once. यदि एक बार कर ली, फिर आप उसमें ओवर रिलाई मत करिए, फिर सेल्फ स्टडी कर लाइए और सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए. And Absolutely. now, yes, then about quitting the exam, so it is not an escape. भी आप क्विट भी कर देंगे, फिर भी आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन नहीं होगा. सो मैं ये Right. कहना चाहती हूँ, यदि आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, तो आप कीप गोइंग. जैसे कि बोला है गौतम बुद्धा की एक सेइंग है, आपको दीप भव, मीन्स आप स्वयं के दीपक. तो एक टाइम पे क्या होगा कि आपने कोचिंग भी कर ली, कुछ भी कर लिया, या फिर आपने सब कुछ कर लिया, लेकिन आपको खुद का मोटिवेशन खुद ही बनना पड़ेगा. यदि आप Absolutely. लाइट बनेंगे, तो आप क्विट करने का विचार लेके नहीं आएंगे. और यदि आप क्विट भी कर लेंगे, तो फिर आपको वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी. यदि आपको Ab- सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो फिर आप ये पहले से ही माइंडसेट करके आइए कि मुझे जज बनना है, ना कि मुझे फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में बनना है. यदि आप इस माइंडसेट के साथ आएंगे, तो आपको आगे बढ़ते जाएंगे और एक ना एक दिन आप जरूर अचीव. Absolutely. Very good. बोलते हैं ना कि, everything lies within the aspirant only. Success also and learning also. Any coaching or any person can just show you the path, but चलना आप ही को है, चलना आप ही को ही है, और उसको अपने करेज के साथ चलना है. बिकॉज यस, ये जितने भी competitive एग्जाम्स हैं, आई पर्सनली फील दैट दे आर, दे टेक लाइफ आउट ऑफ यू. दे आर सो एग्जॉस्टिंग. आप घर पे बैठे हो, आपके फैमिली, आपके रिश्तेदार, इतना कुछ you'll get to hear, बट आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना है. आप जितनी भी मोटिवेशनल रील्स देख लो, मोटिवेशनल वीडियोस देख लो, कुछ भी आपको हेल्प नहीं करता है जब तक आप अपने आप को खुद पॉजिटिव सेल्फ टॉक्स नहीं करते हो, right? Yes. So that is very, very true. So all the aspirants should be very, very positive about, what they are doing, and should be very, very clear that yes, मुझे judiciary ही करनी है. If there is an iota of doubt, तो वो सारे चीज नीचे आ जाती है. तो Yes. आपको वो 100% क्लियर होना है कि yes, मुझे जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन इज द प्लेस वेयर आई वांट टू बी.
So that is wonderful, right? See, Apurva, you gave judiciary mains, and I think you also faced few interviews. But Yes, the same person who could not qualify and reach, the the ultimate judicial services examination, the same person has made it to the ADPO merit list. So, yes. what is the different? मतलब ऐसा difference क्या रहा कि result इतना different रहा? Isn't that the proof that one failure doesn't define you? Yes. अगर एक जगह में आपका if you have not been able to qualify that, so that doesn't define your future. So you took courage and you qualified and you were in the merit list of ADPO. ठीक है? So that is like great. So what did you do differently in ADPO that actually clicked? फर्स्टली इट वाज ऑल अबाउट माइंडसेट. यदि आपने सोच लिया कि ठीक है मैंने एक एग्जाम में नहीं कर पाया तो दूसरे में भी नहीं कर पाया, लेकिन जो एक्सपीरियंस मिला प्रीवियस एग्जाम से कि ठीक है मैंने एनालाइज किया कि ये पेपर मेरा स्ट्रांग था तो मुझे अब इस पे कम टाइम देना है, ये पेपर मेरा वीक है, इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस आता है एडीपीओ में और बहुत कम टाइम होता है इसमें. तो फिर आपको जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो मेरा फेल्ड एक्सपीरियंस रहा जुडिशियल सर्विसेज का, उसने मुझे हेल्प की इसमें. उसमें क्या होता था कि मैं उन्हीं पेपर को बार बार पढ़ती थी जो मुझे आते थे, फिर मैंने एनालाइज कर लिया जो आता है तो आता है, जो नहीं आता उस पर भी काम करना है. तो ऐसा नहीं है कि जो आप एग्जाम की प्रोसेस सब बहुत कुछ सीखेंगे. जैसे कि आपका नहीं भी हुआ तो फर्स्ट थिंग आप सीखेंगे कि सेटबैक को कैसे हैंडल करना. सेकंड आप ये भी सीखेंगे कि आगे अब क्या करना है. तो यदि आप फोकस कर रहे हैं स्टडीज में है तो आप क्विट मत करिए, एग्जाम्स दीजिए और हो जाएगा कहीं ना कहीं. Absolutely. That is, so I agree 100% with what you have just now said, Apurva, because I feel कि जितने भी आपके failures हैं, they are not to be put in the dustbin. All those failures and rejections can be used as an ammunition to go Yes. ahead, right? So every rejection, every mistake that you make in your life, ठीक है, every failure that you have faced in your life, ठीक है, that is a comeback. दैट इज अ कमबैक. सो अगर हम वो उस चीज को रियलाइज कर दे, अगर दो चीजें हो सकती हैं. एक ऐसा माइंडसेट जहां पे अगर हमने किसी फेलियर को फेस किया है एंड वी आर लॉस्ट एंड डिप्रेस्ड एंड हमें लगता है कि बस जिंदगी तो अब खत्म हो गई है, ठीक है. और दूसरा माइंडसेट दैट यू डोंट कैरी योर फेलियर एज अ बैगेज. यू आर नॉट कैरिंग योर फेलियर एज अ बैगेज, ठीक है. यू हैव टू लोड देम विद बुलेट्स इनटू योर पाथ टू रिजॉल्व योर फ्यूचर. So that's what you did. You fire forward with focus. And, so that is wonderful कि जितना भी आपने एक्सपीरियंस लिया जुडिशल सर्विसेज की प्रेपरेशन में, उसी एक्सपीरियंस को आपने यूटिलाइज किया in your next exam, that is for ADPO, and that is how you came out successful. That's great. So now if I talk about MP, Madhya Pradesh ADPO, what is this exam all about? Like, कैसे नोटिफिकेशन निकलती है, कितनी सीट्स होती हैं, व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट यू हैव टू स्टडी? तो थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताएंगे अबाउट ADPO इन एमपी. Okay. Yes. In MP particularly, it is two-stage examination. It varies from state to state. Okay, some state conducted in 3 stages and some in 2 stages. So in MP, there are 2 stages. First is pre and second is interview. In pre also, there are 2 papers. First one is GK and second one is law. And GK paper is also qualifying paper. So what happens with many students? They scored 90 out of 100 in law paper, but they could not score 20% or minimum 40% in GK. सो यहाँ पे आपको दोनों ही पेपर में फोकस करना है. जो जीके है उसमें इंडिया जीके, एमपी जीके, कंप्यूटर, सारी चीजें कवर की जाएंगी. और जो लॉ पेपर उसमें 32 सब्जेक्ट्स आएंगे. अब 32 सब्जेक्ट्स में कुछ मेजर है कुछ माइनर है, लेकिन जो लास्ट ईयर का पेपर पैटर्न था उसमें सारे ही सब्जेक्ट से पूछा गया था अपार्ट फ्रॉम मेजर और माइनर. सीआरपीसी के भी 3 क्वेश्चन ही थे और किसी माइनर पेपर के भी उतने ही क्वेश्चन थे. सो यू कैन नॉट से दैट कि आपने सीआरपीसी पढ़ लिया, एविडेंस पढ़ लिया तो आपका हो ही जाएगा. आपको सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वल कमांड बनानी है. जब आपके दोनों पेपर्स, इट हैज वन नेगेटिव मार्किंग आल्सो. So you need to be very accurate while answering any question, and you need to know which question has to be attempted and which questions need to be skipped. So you need to be very particular about attempting questions in MPA. एंड जब आपका ये एग्जाम हो जाएगा, प्री क्लियर होगा, उसकी लिस्ट आएगी प्रॉपर, कुछ दिन लेते हैं पीएससी कंडक्ट आती है तो. फिर उसमें सेकंड स्टेज होगी इंटरव्यू.
अब तो आपको रिजल्ट आएगा वो दोनों का कंबाइन आएगा, मींस आफ्टर कैलकुलेटिंग द मार्क्स ऑफ प्री एंड इंटर। Yeah. यस, इतना ही होता है एमपी एडीपीयू के एग्जाम में, 2 स्टेज एग्जामिनेशन है। Okay, so you basically told us that MP ADPO एग्जाम में पहले तो एक आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का एग्जाम होता है और उसमें हमारे पास जीके एंड आल्सो द अदर सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ, एंड इन अदर सब्जेक्ट्स ऑफ लॉ यू हैव ऑलमोस्ट अराउंड 32 सब्जेक्ट्स, सो इट अगेन इट हैज टू बी अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। सो आपका सोर्स क्या था पढ़ाई करने का, मतलब आपने कैसे पढ़ा? Primarily, I relied on for law paper barracks. Barracks are the Great. best source for any examination. So आपको Absolutely. इसके इंटरप्रिटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तब फिर आप कमेंट्री देखिए, और फिर यदि आपको पढ़ना है कमेंट्रीज, उनकी जो स्टैंडर्ड कमेंट्रीज है वो पढ़िए। तो फिर यदि जैसे कि हाँ। बैरिक यदि आपने एनडीपीएस एक्ट उठाया है, आप उस एक्ट को पूरा गो थ्रू करिए, फिर आप देखिए कि कहाँ कहाँ लेक्यूना है, फिर उस पॉइंट पे केस लॉ सर्च करके आप पढ़ सकते। Great. That is a very good strategy that you gave. Ki Bear is the master, is the key to all the success in the judicial services or any competitive exams like ADPO or koi bhi aapne exam dena hai. And also textbooks jo hai that, they only help you to explain the area which Yes. is a blue, which is a, which is a gray area, right? And फिर भी अगर कुछ है तो फिर उसमें हम case law लेंगे. Okay, so that was your source, right? And after that, then you faced the interview. तो आपने इसके लिए कोई again you took any help from anyone or you just did it on your own? I have done it by myself only, ADPO examination, because I have the previous experience. This Okay. previous experience which helped Yes, me. yes. Yes. So आपने वो previous experience को फेंका नहीं, आपने previous experience को utilize किया. That is wonderful, right? And most importantly, negative marking थी. तो आपने कैसे किया कि कि मुझे ये वाले questions जो हैं पहले करने हैं? Was there any particular strategy that you followed to avoid losing marks through negative marking? देखिए, जब भी आप कोई भी प्री पेपर सॉल्व करें जिसमें नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं भी है, तो आप पहले उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए जिसमें आप 100% श्योर है। मींस आप पेपर्स को लेयर्स में सॉल्व करिए। यदि आपने एक बार देख लिया कि 100 क्वेश्चंस आए हैं, 100 क्वेश्चंस में पूरा गो थ्रू कर लीजिए। जैसे यदि आपको 100 में से सिर्फ फॉर एग्जांपल 40 क्वेश्चंस ही आते हैं, तो सिर्फ 40 क्वेश्चंस को ही टिक कर इन फर्स्ट गो। फिर आप जब फर्स्ट गो जाता है तब सेकंड रीडिंग पे आइए, तब फिर उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करिए कि जिनमें आप 80% से ज्यादा श्योर है, मोर देन 50% श्योर है, फिर आप उनको अटेम्प्ट करिए। फिर थर्ड रीडिंग आएगी, उसमें सबसे कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। तो आपने जो Right. क्वेश्चन किए, जो जैसे ही आपने 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए, तब फिर आप एक अच्छी लिस्ट में आने लगेंगे। फिर आप उसमें 20 क्वेश्चंस और अटेम्प्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट टेक इट एज एन एग्जाम। सो आप जब भी कोई प्री एग्जाम सॉल्व करें, आप इसे लेयर्स में सॉल्व करिए, और फिर उनको आइडेंटिफाई करते हुए करिए कि ठीक है, आपको लगता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मैंने 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिए हैं, तब फिर आप रिस्क लेने से बचिए। नहीं तो आप जो रिस्क लेंगे, हो सकता है उसके कारण आपकी नेगेटिव मार्किंग भी हो जाए। यदि जब भी नेगेटिव मार्किंग का पेपर हो जाए, तो फिर आप एक डिसेंट स्कोर जब अटेंड कर लें, तो फिर उस वक्त रिस्क लेने से बचने लगे, और यदि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब फिर आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अच्छा, ग्रेट। सो आपने एक टेक्निक आज हमें बताई कि लेयर्स में हमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है अटेम्प्ट करना चाहिए. दैट इज अ वंडरफुल टेक्निक. यस, आई एम वेरी श्योर दैट व्यूअर्स मस्ट बी टेकिंग लॉट ऑफ नोट्स, एंड आपने जो इतने अच्छे अपनी ट्रिक्स एंड टिप्स आप दे रहे हो, दैट विल डेफिनेटली हेल्प ऑल द एस्पिरेंट्स to crack any of the competitive exams. Acha, so the next, I'm keen on knowing that, did your strategy change for ADPO? मतलब आपके जो daily schedule था, आप कितने घंटे पढ़ते थे, आपने कितने mock test दिए, PYQs किया, जैसे आप judicial services की तैयारी कर रहे थे, वही same pattern follow कर रहे थे, या there was any change? And if yes, what was that change? Firstly, number of hours does not matter in any examination. It is what quality matters. यदि आप सेम आउटपुट 8 आवर्स में दे सकते तो आप 8 आवर्स ही पढ़िए, आपको दूसरों को देख के ज्यादा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं। For particularly ADPO examination, I have followed the same strategy for the judicial services examination. So, apart from doing normal course, I have focused on study only. I did not join anything apart from doing study. तो मैं तो सिर्फ पढ़ ही रही थी उस टाइम पे। और फिर जहां तक पीवाईक्यूज का सवाल है, तो मैंने पूरे पीवाईक्यूज सॉल्व किए। प्रीवियस ईयर के पेपर की बुक आती है, यदि आप जुडिशियरी के लिए भी जाएंगे तो 1996 से लेकर पूरे अभी तक के पेपर्स की आती है।
एडीपीओ के लिए भी जाएंगे तो जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक जितनी भी एग्जाम्स में सबकी बुक आती है, तो आप उनको सॉल्व करिए और उनसे एक्सपीरियंस लीजिए कि मतलब ठीक है आप कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना सबसे बेस्ट तरीका है कि जिसे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप उसे सेम आवर्स में दीजिए। ऐसा नहीं है कि वो 2 घंटे का पेपर हो रहा है, आप 3 घंटे में कर रहे हैं, नहीं, आप सेम एक साइलेंट जगह पे बैठिए और अपने आप को वही सेम 2 घंटे की वॉच लगाइए और पेपर सॉल्व करके देखिए। तो फिर आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वही पेपर 1 घंटे में भी सॉल्व हो, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे रोज पीवाईक्यू यूज करने पड़ेंगे। ये आप रोज Right. So I think करेंगे तो ये फ्री के लिए बहुत हेल्पफुल। right. I also have, the same message that PYQs are very, very important. And इसके लिए ना आपको एक सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए। जैसे आप बता रहे हो ना मॉक टेस्ट, तो आपको डिटर्मिन रहना है। ये नहीं कि आप टीवी भी लगा हुआ है, आप खा भी रहे हो, आप प्रीवियस ईयर्स भी सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और फिर आप तो खुश तो हो रहे हो कि मैंने आज एक प्रीवियस ईयर खत्म कर दिया। बट ऑन द अदर हैंड, इफ यू आर जस्ट सिटिंग इन अ क्वाइट कॉर्नर एंड एक्चुअली सिटिंग विद 100% कॉन्सेंट्रेशन, कि यस आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, दैट विल मेक द डिफरेंस। सो पीवाईक्यूज हर कोई करके जाता है, बट सक्सेसफुल वही रहता है जो माइंडफुली अपने पीवाईक्यूज को करेगा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दैट डिसिप्लिन एंड एक क्वाइट कॉर्नर में एक बड़े ऑनेस्टी के साथ अगर आप इस चीज को, इस प्रैक्टिस को डिलिजेंटली करें। सो वॉज देयर एनी डिसिप्लिन यू फॉलोड? ऐसा होता था यस। कि कभी आप कहीं चले गए सोशल मीडिया, या फिर कोई घर पे शादी है या कुछ है, तो आपने आज नहीं पढ़ा, और क्या पूरे 7 days जब तक सिलेक्शन नहीं कंसिस्टेंट हुआ है? कुछ पढ़ाई की है, मीन्स कि अब ये बात दूसरे की किसी और एग्जाम में हुआ है, लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ था तो रोज ही पढ़ाई करनी पड़ी। मीन्स बाय चॉइस, इट वाज बाय चॉइस, किसी ने बोला नहीं था ऐसा करने को। और फिर जब भी ऐसा रहा है कि ठीक है कहीं पे टाइम देना पड़ा है, तो उस टाइम को मैनेज किया। ऐसा नहीं कि ठीक है आज मैंने वहां चली गई घूमने के लिए, आज ट्रिप कर ली है तो आज पढ़ाई नहीं करनी है। तो मिनिमम एटलीस्ट आप रूटीन बनाए कि मिनिमम 2 घंटे तो पढ़े आप एक दिन। जब भी आपकी यदि इनिशियल स्टेज है तो उसमें ज्यादा घंटे पढ़ने की जरूरत है। यदि आपको 2-3 साल हो गए तैयारी करते करते, तो फिर यदि आपको कहीं पे जाना भी है तो आप कोशिश करिए कि मिनिमम 2 आवर्स की तो आप पढ़ाई हो जाए। अब चाहे वो मॉर्निंग में हो सकता है, इवनिंग में हो सकता है, नाइट में हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आप रात में पढ़ रहे हैं दिन में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो टाइम दीजिए कि मुझे अपनी लिंक ब्रेक नहीं करनी है, मुझे रोज बुक्स के टच में आना है। तो ये रूटीन एक्सीलेंट। को आप फॉलो रिगरसली। यस, तो आई फील दैट कंसिस्टेंसी इज द की। एक यस तो बेयरअप इज द की, और सेकंड इज कंसिस्टेंसी। आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसे नहीं कि आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, फिर आपने एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया फिर छोड़ दिया। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ ही पढ़ना पड़ेगा। यस। और ये आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है, ये हाँ। मोटिवेशनल खुद से आनी चाहिए। यहाँ पे मम्मी नहीं बोलेगी कि बेटा पढ़ ले, ठीक है, और आपके कोई फैमिली मेंबर्स या रिलेटिव्स नहीं आपको चेक करेंगे, या फ्रेंड्स चेक नहीं करेंगे पढ़ रही है कि नहीं पढ़ रही है, राइट, या पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। दिस हैज टू कम फ्रॉम विद इन। सो इफ यस। एंड वो विद इन से तब आएगा जब आपका पर्पस क्लियर होगा, ठीक है ना, कुछ करने की वो होगी। सो दैट इज ग्रेट दैट यू आर सेल्फ मोटिवेटेड, और आपने उस सेल्फ मोटिवेशन से जो है एक डिसिप्लिन तरीके से अपना इस एग्जाम को क्रैक किया। डिड दिस एलएलएम, जैसे आपने एलएलएम भी किया है, आपने यूजीसी नेट भी क्वालिफाई किया है, ये सारी जो डिग्रीज हैं और जो इनकी प्रेपरेशन रही है, डिड दे हेल्प इन क्रैकिंग दिस एग्जाम ऑफ एडीपीओ? तो फर्स्टली एडीपीयू में तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ बीए एलएलबी या एलएलबी की ही है। तो जितनी भी राइट। एडिशनल रिक्वायरमेंट है वो आपको एज अ बैकअप प्लान के लिए मोटिवेट करते हैं कि ठीक है कि मेरा एक बार यूजीसी नेट क्लियर हो गया है तो आई एम सिक्योर, अब मुझे मेंटल इतना टेंशन नहीं है कि चलो ठीक है कुछ ना कुछ बैकअप तो है। तो ये जो एलएलएम और जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है ये आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए बहुत बेस्ट है कि ठीक है मेरा कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा इस सोच के साथ। तो फिर ये इस राइट। तरह उन्हें मेंटली इन्हें हेल्प किया है एग्जाम में, ग्रेट। यूजीसी नेट में। Great. So, for all the ADPO aspirants who are watching this, can you give Apurva a subject-wise tip or trap to avoid for subjects like, जो आपने 32 subjects बताए हैं, उनके लिए आप कुछ भी कोई टिप और ट्रैप एडवाइस बच्चों को देना चाहेंगे? यस, फर्स्ट टिप यू विड कंसिडर एज अ टिप
कि आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। ये नहीं सोचिए कि सीआरपीसी पढ़ लिया है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेक्शंस है तो आपने बड़ा वेटेज कवर कर लिया एग्जाम में। ऐसा नहीं, आपको जो 32 है 32 में से 32 ही पढ़ने हैं, क्योंकि आप उसे एज अ सब्जेक्ट देखिए, ना कि उसके नंबर ऑफ सेक्शंस पे जाए। लास्ट टाइम जो माइनर सब्जेक्ट से भी 3 क्वेश्चंस थे, सीआरपीसी से भी 3 क्वेश्चंस थे। और सेकंड वन इज कि जो उसके जो मेजर केस लॉज आ रहे हैं डे टू डे, आप उनसे अपडेट रहिए। वो कहीं ना कहीं आपके इंटरप्रिटेशन को बेटर बनाए। यदि आपने उनसे अपडेट नहीं रहे, तो फॉर एग्जाम्पल यदि आप रिमांड के एग्जाम्पल ले लीजिए, तो आपको कैसे टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, कब करना है, ये आप नहीं समझ पाएंगे, बैरक में कहीं पे भी नहीं। तो यदि आपको राइट अवेयर रहना है तो आप केस लॉज को फॉलो करिए, क्योंकि केस लॉज से कहीं ना कहीं आपका इंटरप्रिटेशन खुलेगा और वो एग्जाम में आपको रिफ्लेक्ट करेगा। सो दीज आर राइट द टिप्स एंड ट्रैप्स। Yeah, thank you. Um, so if I come to life as an ADPO officer, Apurva, what does an ADPO actually do in day-to-day practice में आप लोग क्या करते हैं? What is the actual working? फर्स्टली आप इसे ग्राउंड लेवल ऑफिसर मानिए। जो लॉ की रियलिटी है, वो यदि आप कुछ भी मान लीजिए हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करेंगे, तो वो रियलिटी आप समझ ही नहीं पाएंगे जब तक आप ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे। तो जो एक Absolutely. एडीपी ऑफिसर है वो एकदम ग्राउंड लेवल लॉ की रियलिटीज को जानते हैं कि व्हाट इज लीगल लिटरेसी। या जैसे कि एक डिस्ट्रिक्ट का जो लीगल एडवाइजर होता है वो एडीपीओ होता है। यदि कुछ एसपी या कलेक्टर को भी कुछ लीगल ओपिनियन लेना है, तो एडीपीओ ऑफिस से ही जाएगा। यदि वो कहीं पे भी लीगल कॉन्फ्लिक्ट आता है तो एडीपीओ ही उन्हें एडवाइस करेगा। तो ये तो हो गया आपका ये जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में एडीपीओ की। अब जितनी भी क्या होता है, पुलिस ने आपकी चार्जशीट फाइल कर दी। पुलिस एक पर्सनल है जिसे प्रिवेंटिव काम भी करना है और फिर उसे लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है। सो दीज आर जनरलाइज्ड पर्सन, दे डज नॉट रिक्वायर एनी लॉ डिग्री, बट दे हैव टू डील विद द लॉ। तो यदि उन्हें कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करना है, उसमें उन्हें कुछ भी कहीं पे भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी एडीपीओ से ही कॉन्टेक्ट करें। तो ये हो गया अपने पुलिस से कनेक्शन। अब इसके बाद आता है कोर्ट। अब कोर्ट में जितने भी क्या होगा कि जितने भी विटनेस आएंगे, उनके जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, चीफ होगा, क्रॉस होगा, तो चीफ एडीपीओ ही करेगा प्रोसिक्यूशन विटनेस का। यदि कोई डिफेंस विटनेस आया तो उसका चीफ डिफेंस काउंसिल करेगा, उसका क्रॉस फिर एडीपीओ करेगा। अब इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस मूव करनी होती है, जैसे कि आप फाइल देखिए। तो ऐसा कहते हैं कि यदि आपने कोई फाइल देखी, आपको लगता है कि उसमें अमेंडमेंट हो सकता है, तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि चार्जेस अमेंड होंगे, तो आप उसकी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कोई एडिशनल विटनेस बुलाना है, तो ये तो कोर्ट प्रोसीडिंग हो गई। और यदि आपको लगता है कि आपको कोर्ट जो है विड्रॉ करना है, तो आप इसके लिए भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं। तो ये जो एडीपीओ का काम है वो जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में भी है, और लीगल फील्ड में तो है ही। तो आप ये तीनों से कनेक्टेड है ये। Great. So how's the work-life balance? Is it overwhelming or is it manageable? आई वुड कॉल Workload इट, कैसे? I am happy with this job, and I would say that it has great work life balance. कि Wow. आपको, because since it is a government job, तो आपके आवर्स तो फिक्स हैं ही, तो आपको उतने आवर्स में ही काम करना। तो इसके बाद जितनी भी स्पेशली फॉर वुमेन, यदि वो चाहें कि, क्योंकि उन्हें उन्हें ही सबसे ज्यादा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना होता है, ऑल्दो मैन को भी करना पड़ता है, बट वुमेन हैज Mm. सम स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उनके Yes. लिए बहुत अच्छी जॉब है कि वो उनकी वर्क लाइफ बैलेंस इजी हो जाएगा, कि आप अपना काम करिए और अपना आप हर चीज मैनेज कर सकते। सो आई वुड कॉल इट ओवरवेलमिंग, नॉट ओनली मैनेजेबल। अच्छा, मतलब इट इज मैनेजेबल, मैनेज कर पाएंगे आप। अच्छा, एंड क्या टाइमिंग्स है इसके, मतलब व्हाट आर योर वर्क टाइमिंग्स? देयर ऑफिशियल टाइमिंग ऑफ 10:30 to 5:30 PM। और उसके बाद घर आकर कोई काम नहीं है, कोई फाइल्स नहीं है या है? कि आपको लीगल स्टडी, जैसे आपको कुछ केस आया तो आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। ओपिनियन फ्रेम करना है तो आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च वर्क। ओके आफ्टर इट इज अबाउट डूइंग रिसर्च। ओके, बट ऐसे कोई मतलब मैंडेटरी काम तो नहीं है जो आपको फॉलो करना है? काम नहीं है, इट इज ओनली अबाउट डूइंग रिसर्च और प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो। Tomorrow. Okay. Great. So it is quite manageable and very good for females, at least as you mentioned, कि वो घर आके अपनी बाकी की responsibilities भी जो है वो fulfill कर सकती है. So the most baiting part, जिसमें we all really look forward to, what is the pay scale that this job offers? Firstly, in MP, it is a gazetted officer, grade B officer. So it has a pay scale of 4200 grade. Means it is calculated on the basis of DA, TA, and it would be added many things.
So, and cash in hand salary is about 60,000 or 61,000, but overall salary is 68,000. एंड Great. इसमें कुछ फंड भी होता है तो उसमें भी गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करती है, तो इस तरीके से है। So मतलब cash in hand is also good. It's a handsome salary, good enough. अच्छी salary है, and with work-life balance and perks like you are secured. ऐसा नहीं होगा कि किसी दिन कोविड आया या किसी दिन कुछ भी शट डाउन हो गया तो आपकी जो है यू आर फायर्ड. इट इज अ सिक्योर जॉब. पर्क्स है वो तो आप सभी जानते हैं कि यस इट इज जॉब स्टेबिलिटी, और आपके पास जो रिस्पेक्ट होनी चाहिए वो आप डिजर्व करेंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, तो आप इसे सबसे बड़ा पर्क काउंट करिए, क्योंकि जो रिस्पेक्ट आपको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रही है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से मिल रही है, कोर्ट से मिल रही है, वो बहुत ही अच्छी है। Wow, that is great. That is excellent. That is excellent. So ADPO is a complete package, I feel, after the आई वुड judiciary. पैकेज। Yes. So do you see yourself as ADPO, matlab aap ADPO as a career and you will continue, or is there any chances judiciary still in the radar? Now it is all about God's plan, as I have stated earlier. And currently, I'm enjoying my job. So, You are I enjoying think it. it's a good Absolutely. career. Great. And अभी आपको financial independence भी है जिसने आपको खूब motivate किया है. Which Right? anybody can Right. deserve. So what would you say to someone who has failed multiple attempts, जिसने बहुत सारे attempts दिए and is losing motivation? Anything that you want to, any advice that you want to give? सबसे पहले जितने भी मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हैं, आप उन्हें एक लेसन की तरह ट्रीट करिए। आप ये मत देखिए कि आपके इतने सारे अटेम्प्ट्स हो गए हैं और आपका एक फ्रेंड है उसने इतना अचीव कर लिया, आप भी उस फील्ड में होते तो आप भी अचीव कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, वो मेंटल सेटिस्फेक्शन तभी होगा जब आपने जो पाथ सिलेक्ट किया आप उसको अचीव करें। तो आई वुड एडवाइस कि आप करते रहिए, क्विट मत करिए, और जो एक सेइंग है बी योर ओन लाइफ उसे फॉलो करिए। Yes. यदि आप Comparison. हाँ जी, please. यदि Go आप ahead, उसे Apurva. तो आप फाइनली कहीं ना कहीं अपने डेस्टिनेशन को अचीव कर लेंगे, क्योंकि क्विट करना कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही उससे आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। Right, तो right, गुड right. एडवाइस देता हूँ। I feel comparison is a very big deterrent. मतलब comparison ना, it is like, I tell you, it's like just taking a poison. एंड वी वो ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन टाइम। yes. And ये ना हर एक फील्ड में है. चाहे आप यस कंपेटिटिव एग्जाम है ना, मेरा पड़ोसी अच्छा कर रहा है, मेरा कंपैरिजन, मतलब आपको एक कंटेनमेंट इन लाइफ बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू राइज एंड शाइन इन लाइफ इन ऑल द फील्ड्स. चाहे वो कंपेटिटिव एग्जाम्स है, चाहे आपका एज अ करियर ऑल्सो, इवन इफ यू आर लाइक वर्किंग एज एन एडीपीओ, you can't compare yourself with an AD, with a yeah, another ADA or ADPO in any other state कि उसके इतने perks हैं उसको, because it's a state exam. कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, कुछ सैलरी का डिफरेंस होगा, कुछ पर्क्स का डिफरेंस होगा, मे बी इवन इफ इट इज योर कोलीग, सो दैट कंपैरिजन इज, आई थिंक, डेटरेंट. वो एक सब लोगों को अवॉइड करना चाहिए, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं, वॉट एवर स्टेजेस ऑफ लाइफ वी आर इन. सो दैट इज yes, something that one must take note of. So what's your message to law students जो अभी लॉ कर रहे हैं and they are wondering कि लॉ के बाद क्या, तो उनके लिए क्या मैसेज है अपूर्वा आपका? फर्स्टली उन सबके लिए मैसेज है कि यदि आपने लॉ सिलेक्ट किया है तो आपने बहुत अच्छा कोर्स सिलेक्ट किया है, अपने आप के लिए ग्रेटफुल रहिए कि आपने सिलेक्ट किया है। सेकेंडली यदि Right. आपने लॉ किया है तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। फर्स्टली आपको जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन पता ही है, एडीए भी एक वन ऑफ देम है, यदि आप कॉर्पोरेट्स भी है यहाँ पे। बस मैं लॉ एस्पिरेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि यदि आप सिर्फ लॉ की नॉलेज पे फोकस करिए, यदि आपके पास नॉलेज है आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, लॉ के मल्टीपल डायमेंशंस में, या आप कंपनी भी ज्वाइन करते हैं और किसी कॉर्पोरेट फर्म में भी जाते हैं तो आपको वहीं पे सिर्फ आपकी नॉलेज से ही पहचान मिलेगी। तो आप सिर्फ फोकस करिए अपनी नॉलेज पे, उसे एनहांस करिए और लगे रहिए। ग्रेट. आई अंडरस्टैंड कि जो लॉ बच्चे कर रहे हैं, इवन आफ्टर the pronouncement of the Honorable Supreme Court's judgment that 3 years is now mandatory for the judicial services examination, right? तो कुछ बच्चों को बहुत सेटबैक लगा है
कि हमने तो लॉ स्टार्ट किया था और हम साथ साथ में जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, ठीक है, और अब द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैज गॉट पोस्टपोन. So yes, Apurva, I am 100% sure that it's just not judiciary, it's not just 1, 2, 3, but it is endless opportunities in law. It is endless opportunities in law. And यही हमारा effort रहेगा, हमारा endeavor रहेगा इस series में, कि हम जितने भी possible career options हैं उन successful students को, उन successful लोगों को इस platform पे लाकर आपको बताएं कि क्या क्या career options available है in law. So one being ADPO, as Apurva said, and I'm sure Apurva is absolutely enjoying what she is doing, and it is a very good alternative for someone who has been preparing for judiciary. So is there also any requirement of compulsory practice, mandatory practice ka requirement hai, Apurva, for this exam? Necessary practice requirement. There is And no koi mandatory requirement. So directly after LLB, we can give this exam. yes. So that all of you should take a note of. So आप जब जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, आप स्विच कर सकते हो ADPO के लिए, Yes. and that in you're eligible right after your LLB degree. जैसे आपका LLB डिग्री हुआ, आपको 60-70 हजार रुपए की अच्छी नौकरी मिल रही है ADPO के, and it's a best alternative, I think. Apurva, what thoughts you have on that? Yes, I would support you in this. Yes, absolutely. Yes, प्लस yes. आप ग्राउंड रियलिटी से कनेक्ट होंगे, आपको एडवोकेसी स्किल्स भी आएंगे, विट भी सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे आप उसमें. और साथ साथ में फिर आपका जुडिशरी का जो ऑप्शन है वो भी ओपन ही है. That यस is open. That is open. So that is very, very, attracting. हम बोलेंगे एक आपके लिए एक बहुत attracting जॉब यस है, एक attracting जॉब है जिसको आप जुडिशियल सर्विसेज को रिप्लेस कर सकते हो with ADPO for some time, and then after that you can give your judicial services examination. Right? So Apurva's story is a proof that success doesn't always come where you expect it, but it will come if you don't यस stop showing up. will definitely come. Yes. Yes. So to all my viewers, if you are stuck between attempts, you are confused after law school, or you're losing motivation, और you are अभी आप जो है अभी law जो है pursue कर रहे हैं, this is your sign to keep going and keep ADPO as an option for a career in law. So thank you, Apurva, for being so real. Your story will save someone today, I'm sure, And if you have the last final words for our viewers, I would request you to please kindly share. I would like to repeat my words. Be your own light. आप कंपेयर मत करिए किसी से भी, क्योंकि कंपैरिजन के लिए सेम ग्राउंड होना चाहिए, जो कि पर्सनल लाइफ में कभी पॉसिबल नहीं है कि दो लोग सेम फुटिंग पर. आप बस लगे रहिए, हो जाएगा आसिफ. Right. Great, great. Thank you so much. I am sure that all my viewers have loved this episode, and this episode has given you a lot of clarity and courage. You can drop comments in the comment section, share it with your law circle. Make sure that you subscribe to our YouTube channel for more real stories from Law Ke Baat Kya. Till my next episode, all of you take care and God bless. Thank you.